particularly Khalsa Girls Degree College, Delhi. This call is now being recorded. College of Engineering, Banasthali University, Delhi Technical University. She is already having more than 20 years of teaching and research experience in Delhi College of Engineering, Banasthali University, and South Asian University. She is CSIR net qualified twice and had been awarded JRF by MHRD to carry out research towards her PhD at Delhi University. Her PhD dissertation, New Frontier in the Theory of Sine Graphs, is under the guidance of Professor Mukti Acharya, University of Delhi. She has more than 145 research papers to her account in journals of high impact factor. She has guided many students in discrete mathematics in MSc, MPhil, and PhD level. She has guided 17 PhD students and 7 MPhil students and 16 master's students. She has taught various courses in pure mathematics, applied mathematics, and computer applications, both at undergraduate and postgraduate level. She was principal investigator to the project sanctioned by DST under Matrix project Emerging Frontiers in Application of Sine Graph Structured. She has referred several research papers for national and international journal of high impact factor like Discrete Applied Mathematics, Graphs and Combinatorics, International Journal of Physical Science, etc. She has organized, coordinated more than 40 workshop training programs and conferences. She was also the member of syllabus committee in Central University of Rajasthan. She is a member of several reputed societies of mathematics. She has delivered several lectures as a resource person and invited speaker at different places in India and abroad. She has edited two special volumes of the journal in Elsevier and she has received one book published by Taylor and Francis. She has chaired several sessions in national and international conferences. She is a member of five reputed Society of Mathematics. She is a member of Board of Studies, School of Basic and Applied Science, K.R. Mangalam University in Gurgaon, India. She is a member and advisory group of Department of Mathematics and Science Computing, Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. So she is also the follow the Indian Academy of Mathematical Modeling and Simulation, headquartered at IIT Kanpur. So that's all about from my side, and I honored you, and I am very pleasure to invite you, ma'am, on behalf of research committee. I welcome you, ma'am, and I deliver the session to you. Welcome, ma'am, and continue, ma'am. And the language will be the bilingual. Thank you so much, ma'am. Thank you, Neha. Thank you, Thank Neha. you. Thank you. I don't know why there is a echo. Echo? There is an echo now, right? Completely audible and visible. Okay. So I let me share my slide and then we'll start. And thank you very much, Neha, for a very nice introduction of mine. And No, ma'am, it's a pleasure for me to invite you because you काफी are a अच्छा तरह का सीवी था आपका बहुत वाइड था student. मजा आ गया You are a student of commerce. Still, I will try to make my things understand because understanding different subjects is also important, you know. And ओके मैम I will try. I'll try my best so that everybody enjoys the ride which I'm going to make you all through, है ना? सफारी राइड आपके यहाँ पे चलता है तो सफारी राइड कराते हैं आपको, ठीक है? बिल्कुल मैम Okay. So let me share the slide. Yeah. So are you able to see the slide? Yes? Are you all able to see the यस slide? मैम Yes, यस ma'am. मैम Yes, एब्सोल्युटली ma'am. ऑडिबल Okay. So today अभी क्या है ना कि मतलब I'm because I am asked to be bilingual, so I'll be speaking both in Hindi and English. So what happens? आजकल क्या है कि जब हम जैसे
एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है क्या एक्चुअली? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा, मैथमेटिक्स के भी, कि हम ना किसी चीज को लॉक करना चाहते हैं। बहुत पुराने जमाने में जब जब अलमीरा होता था, तो इफ यू हैव अगर आप लोग ने मूवी देखी होगी तो मूवी में देखते हैं कि वो अलग अलग नंबर से उसको लॉक करते थे, तो वो लॉक हो जाता था और फिर वो उसी मेंबर जो जिसने लॉक किया वही खोल सकता था, बाकी कोई उसको खोल नहीं सकता था। तो कई ऐसी इंफॉर्मेशन है आज के डेट में जो कि ना हम चाहते हैं कि वो सीक्रेट रहे। जैसे मैंने वो मेरे पास मतलब मेरा वो इंफॉर्मेशन कुछ कुछ उन्हीं लोगों के बीच में रहे जिसके बीच में हम चाहते हैं, है ना? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज जो है, हम हमारा मैसेज अगर हम कई बार हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं, मान लिया कंप्यूटर के थ्रू या कुछ बीच में हैक हो गया तो मैसेज लीक हो गया दूसरे, है ना? तो कई चीजें बहुत बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं जिसमें कि हमें ये रहता है कि नहीं नहीं भाई, ये मेरे को पता हो और मैं जिसको भेजना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ उसी को पता हो, बाकी किसी को पता नहीं। तो जब हम उसको भेजते हैं ना, तो बीच में हैक भी हो तो हमें डर ना लगे कि मतलब ये लीक हो गया, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, मैसेज को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं या मैसेज को कोड कर देते हैं, जिससे कि जिसके पास हम भेजना चाह रहे हैं वो उसको डिकोड कर लेगा। तो जो हम कोड करते हैं तो उसको कहते हैं एनक्रिप्शन, और जो बंदा डिकोड करेगा उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। और बीच वाले बंदे ने अगर निकाल भी लिया, मतलब हैक कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल मैसेज है क्या, क्योंकि वो तो कोडेड फॉर्म में था। तो ये है मोटे मोटे तौर पे, अगर हम ये देखा जाए तो दिस इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं थोड़ा मैथमेटिक्स की हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स को लेके कैसे इसको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मतलब कोई मैसेज अगर मुझे पास करना है तो कई तरीके हैं। ये तो मैंने बहुत क्रूड तरीका बताया, देर आर सो मेनी वे। और आज के डेट में जो इस पे काम कर रहा है वो तो बहुत हाई 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 पे पहुंच गया। ठीक है, तो हर आदमी कुछ बनाता है, फिर उसमें उसमें भी कुछ कहीं ना कुछ लीक होने की संभावना रहती है, तो फिर दूसरा उसमें कुछ और कुछ करता है जिससे कि वो बिल्कुल लीक ना हो, लेकिन फिर भी उसमें लगता है नहीं नहीं, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है ना, खोलने में। जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कभी कोड किया, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में टाइम इश्यू रहता है कि टाइम ज्यादा ना लगे। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर वही बेकार हो गया। तो मतलब क्योंकि बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी नहीं होती है ना। मैंने लॉक एंड की का तो बिल्कुल छोटा एग्जांपल लिया, लेकिन इंफॉर्मेशन जैसे जैसे कंट्री के बारे में हो या कुछ हो जिसमें बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, तो सब लॉक रखना होता है। वो लॉक करने के लिए कोड करते हैं। ठीक है, तो ये कोडिंग जो है इसमें टाइम इम्पोर्टेंट होता है कि डी कोड करने में इतना टाइम ना लग जाए, फिर वो समस्या है। तो फिर उसके ऊपर दूसरे आदमी और काम करते हैं, दूसरे रिसर्चर, कि उसका टाइम और कम हो जाए, तो इसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं धीरे धीरे जो वट एवर मैं मेरा जो स्लाइड है उसको मैं बताऊंगी, एंड देन उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊं, क्योंकि इट इज टोटली मैथमेटिकल, है ना? ठीक है, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है दिस इज, पहले तो मैं प्रेलिमिनरीज उसमें कि क्या मिनिमम क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। फिर मैं किस चीज को डिकोड करूं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन को मैं थ्रू साइंड कैलीग्राफ से डिकोड एनकोड मतलब एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करूंगी, मतलब कोड करूंगी और डिकोड करूंगी। तो ये साइंड कैलीग्राफ क्या है, ये सब मैं आप लोग को अपने स्लाइड्स में बताऊंगी। ठीक है, तो ये है। तो प्रेलिमिनरीज क्या है कि सबसे पहले मैं बताऊं तो कि जैसे अ, उस प्रेलिमिनरीज में मैं डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करूंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, नोटेशंस, जिससे कि आपको समझ में आए, एंड इट गिव्स, और जो मेजर प्रॉब्लम इसमें टैकल किया हुआ है और इसका क्या डायरेक्शन ऑफ रिसर्च है वो बताएंगे हम इसमें, है ना? तो पहले व्हाट इज ग्राफ। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के बच्चे अगर यहाँ पे हैं उनको पता होगा। तो पहले क्या है कि मैं पहले स्ट्रक्चर से बताती हूँ कि जैसे कि आ, वन, जैसे मेरे ना ये 1 2 3 4 5 6 एंटिटीज हैं। इनको मैंने एंटिटीज मतलब मैं जिस भी
चीज पे काम करती हूँ उसके अंदर, तो जैसे उसके अंदर क्या हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हमारी पहले हमें वो जो जिस पे हम काम करना चाहते हैं वो हमें चाहिए, फिर उनके बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एक मतलब मैंने नंबर के फॉर्म में किया, क्योंकि अब मैं एप्पल एग एप्पल और बनाना और ये सब करूंगी तो मुझे तो फ्रूट के नाम ही गिनते रह जाऊंगी। तो क्या है कि नंबर से डालने से आराम रहता है, क्योंकि हम तो ये अभी किसी मॉडल पर्टिकुलर पे बात नहीं कर रहे, पर अगर मॉडल का नाम, मॉडल में जो एंटिटीज हम रिक्वायर कर रहे हैं, अगर वो 1 2 3 4 5 6 है जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने यहाँ रख दिया। और मान लिया कि 1 2 से रिलेटेड है, मतलब 1 का काम, जो मेरा मॉडल है उसमें 1 का काम 2 से होता है, ठीक है। तो मैंने उसके बीच में लाइन खींच दिया। लाइन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, इट कैन बी कर्व्ड ऑल्सो, ठीक है। 2 और 3 के बीच में लाइन खींच दी, 1 और 3 के बीच में कोई मतलब कोई काम नहीं है, तो मैंने उसके बीच में लाइन नहीं खींचा। अच्छा, ये जो है ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा ना, तो उसमें समझने में आसानी रहती है। जो भी आपने मॉडल लिया है उसमें अगर इस तरीके का मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्लास, ये एक क्लास के ये सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब 1 जो है वो 2 से तो बात करता है या 2 से फ्रेंडली है, पर 1 3 से फ्रेंडली नहीं है, तो उसके बीच में लाइन है। तो ये क्या हो गया, रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन हो गया, कि जो जिससे फ्रेंडली है उसके बीच में लाइन है, जिससे फ्रेंडली नहीं है उसके बीच में लाइन नहीं है। तो एक 6 बच्चों का एक ग्राफ इस तरीके से बता सकते हैं। और ये लाइन जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन हो, कैसे भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है वो बहुत कम जगह लेता है, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है। तो ये एक जैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनको ये पता होगा कि फ्लो चार्ट बनाते हैं, कि भैया एक यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से इनपुट किया, फिर इनपुट से ये आगे इसमें जाएगा, ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो इट विल गो टू द अदर अदर ट्री के फॉर्म में बनता चला जाता है। तो वो भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी हम ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ए ग्राफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ये जो मैथ्स में है ना, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये वर्टिसेस है जिन पे हम काम करना चाह रहे हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। क्योंकि पहले तो क्यों, ग्राफ है ना, ग्राफ की अपने ये जैसे बना है, इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज पता हो ना, तो हमें तरह डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, क्योंकि हर समय यही ग्राफ तो नहीं होगा, डिफरेंट ग्राफ होगा, तो अब मतलब कि प्रॉपर्टीज पता तो उसको टैकल करने में हमें आसानी होगा। तो इसको वर्टिसेस बोलते हैं मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस के बच्चे इसको नोड्स बोलते हैं, और जो इसके बीच का रिलेशन है उसको लाइंस बोलते हैं, ठीक है। और मैथ्स में इसको ये जो लाइन है, इस लाइन को भी नाम दिया हुआ है FGDIH, इसको एजेस बोलते हैं। तो इस तरह, क्योंकि लाइन कैसे भी बना सकते हैं इसलिए इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि बस हमें लाइन स्ट्रेट इसलिए बनाई है क्योंकि कर्व कितना भी बनाएंगे ऐसे ऐसे करके तो वो मतलब वो स्पेस ज्यादा लेगा, और वो अननेसेसरली स्पेस सबसे कम स्ट्रेट लाइन में लिया जाता है। तो जब तक जरूरत ना हो आदमी हम बनाने की स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 इसको चूंकि हम वर्टिसेस बोल रहे हैं तो इसको वर्टेक्स सेट बोलेंगे। और एंड द कलर, और जो एज, ये जो लाइंस है बीच की, ए बी सी, नहीं, ABCDFGHI, तो इसको लाइंस और एजेस बोलते हैं, और उनके कलेक्शन का सेट को कैपिटल ई बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो सब, इसको ई एज को हम दो सबसेट भी बोल सकते हैं कि बी इज मेड अप ऑफ by 2 and 4, A is made by 1 and 4, F is made up of 1 and 2, so D is made up of 2 and 6। so ये एक वो भी है कि मतलब आपका टू सबसेट भी बोल सकते हैं। टू सबसेट मतलब ए सेट जिसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हो, ठीक है, और इसको कहते हैं टू सबसेट। तो मेरे ख्याल से आई एम, दिस इज एग्जांपल, एक एग्जांपल है ग्राफ, ठीक। अब इसी में साइन ग्राफ हो गया। तो साइन ग्राफ में क्या होता है ना, कि जो ग्राफ है, जैसे ये एक तरीके दूसरा ग्राफ है, तो इसको साइन ग्राफ को एस से, ग्राफ को जनरली जी से डिनोट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे
ठीक है, तो साइन ग्राफ को एस से डिनोट करते हैं। उसमें क्या है कि इस पे फंक्शन लगा देते हैं, इसमें फंक्शन लगा दिया, जैसे इसमें कि 1 और 2 के बीच में फंक्शन +1 और -1 का, एज पे फंक्शन लगा दिया +1 एंड -1 का। अगर 1 और 3 के बीच में आपस में कोई रिलेशन है तो ठीक है, लाइन तो जुड़ेगा, लेकिन अगर ये रिलेशन प्लस है तो ये बोल्ड लाइन से दिखाएंगे, और अगर इसके 1 और 2 के बीच में ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो लाइन है, लेकिन इनका वेट जो है रिलेशन माइनस है तो वो डॉटेड लाइन से। तो ये दो तरीके, तो अब इसमें क्या दो इन्फॉर्मेशन एक साथ हम पढ़ सकते हैं कि एक पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रिलेशन बोलेंगे, इसको नेगेटिव या उसका एंटी। तो एक जो है 3 एंड 2 आपस में जुड़े ही नहीं है तो दे आर नॉट रिलेटेड, तो कोई बात नहीं। अगर रिलेटेड है तो क्या प्लस से रिलेटेड है या माइनस से रिलेटेड है। अगर इस टाइप का ग्राफ अगर हम मॉडल करना चाहें तो इसको कहते हैं साइन ग्राफ, ठीक है। और ये जो एजेस के साइन है +1 या -1, उसको कहते हैं सिग्नेचर। अब आते हैं, मैंने कहा था कि एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन हम यूनिटरी कैलेग्राफ और साइन कैलेग्राफ से करेंगे, ठीक है। तो पहले यूनिटरी कैलेग्राफ क्या होगा, तो पहले तो ये क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफ होगा, ठीक है। यूनिटरी कैलेग्राफ पहले तो इसको ग्राफ होना पड़ेगा, तो जिसका वर्टेक्स सेट क्या होगा, Zn। अब Zn तो मैथ्स के बच्चों को पता होना चाहिए, पर एक सेकेंड, कोई है मैथ्स का बच्चा जो कि मुझे बताएगा कि व्हाट इज Zn? कोई है स्टूडेंट, व्हाट इज Zn? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस मैम। यस, क्या? इंटीजर मॉड्यूलो n। इंटीजर मॉड्यूलो n। इंटीजर मॉड्यूलो n, मतलब इसके एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 to n - 1। 0 to n - 1, गुड, है ना। तो यही है, मैं अभी इसी को ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो वर्टेक्स सेट है, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया था, उसकी मैंने लेबलिंग क्या की थी, 1 2 3 4। मैंने कहा था ना कि मॉडल में जो रिक्वायरमेंट है उसके नाम से लेबल करेंगे, तो भाई वो तो जब मॉडल बनाएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ने के लिए 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी दूर तक भी जा सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं वो Zn है, मतलब कि 1 0 1 2 अप टू n-1, ठीक है। तो द इंटीजर मॉड्यूलो n यहाँ पे भी लिखा हुआ था। और un क्या है, वो un वो एलिमेंट का सेट है। Zn तो 0 1 2 n-1, और un वो एलिमेंट्स का सेट है जिससे कि जो n से प्राइम हो, को प्राइम हो, ठीक है। तो उसको यूनिट्स भी कहते हैं। तो ये जो है, तो जैसे कि अगर n अगर इज इक्वल टू 10 है, तो 2 un में 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2n 5 में 2n 10 में कॉमन फैक्टर है। तो अगर n इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 10 है तो 3 और 10 3 हो सकता है un का एलिमेंट। इसी तरीके से 7 un का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि 7 और 10 को प्राइम है एक दूसरे के। तो ऐसे हमें एलिमेंट्स का सेट लेना है। अब ये देखो, देख रहे हो कि हम कितना ज्यादा इसको, हम जब इसको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में ले जाएंगे ना, तो जिस बंदे को इतनी मैथमेटिक्स नहीं पता होगी वो समझेगा ही नहीं कि ये कैसे किया है, ठीक है। तो तरह तरह से लोगों ने काम किया, और ये वाला मैं एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग के आगे प्रेजेंट कर रही हूँ। द इंटीजर्स एंड इफ un denotes the set of all units of the ring Zn। तो अब हम इस दो वर्टिसेस a एंड b आर एडजेसेंट इफ एंड ओनली देयर डिफरेंस बिलोंग्स टू un। क्या होगा कि हमारे जो वर्टेक्स सेट है उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 अप टू n-1। और कोई भी दो के बीच में लाइन जब भी होगा, अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये तो नंबर है और नंबर को हम माइनस कर सकते हैं, तो आपस का डिफरेंस अगर वो un का एलिमेंट होता है तब तो इनके बीच में लाइन बनाएंगे, और नहीं तो नहीं बनाएंगे। जैसे आपका ये एग्जांपल है कि लाइन 2 और 3, अब जैसे मैंने यहाँ कंडीशन डाली नीचे, तो कंडीशन 2 और 3 के बीच में लाइन बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करेगा कि 2 - 3 un में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें चलना है।
अभी फिर ये एक पेपर है, हमारा ही पेपर है, ठीक है, यूनिटरी कैलेग्राफ का। तो ये साइन ग्राफ में भी इसको एक्सटेंड किया गया। अब मैंने साइन ग्राफ बता दिया क्या होता है, जिसमें कि डॉटेड मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन साथ साथ चलते हैं, उसमें दो प्रॉपर्टी इकट्ठे देखी जा सकती हैं। तो इसमें क्या किया कि अब ये लाइन होगी, अब इसको साइन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि साइन का फंक्शन ये है कि ए और बी, दो वर्टिसेस ए और बी हैं, तो अगर ये जुड़ेंगे तो वो एज हो जाएगा, जैसे इसको बोल रहे हैं ये, जैसे 1 2 यहाँ पे नाम नहीं दिया है ना, ए नाम कोई एज का नाम नहीं दिया, तो इसको मैं 1 2 एज भी बोल सकती हूँ, डॉटेड एज को मैं 1 2 एज बोल सकती हूँ। और ये वाला इस एज को 1 3 एज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्या कहा कि अगर हम, हाँ, अब मैंने पहले ये ग्राफ बना लिया, फिर मैं किस लाइन को डॉटेड करूं, किस लाइन को बोल्ड रखूं, वो ये कह रहे हैं कि डॉटेड तो जब बोल्ड तो जब करना अगर इन ए और बी जो दोनों एलिमेंट्स यूएन के भी थे और उनका डिफरेंस भी यूएन पे, तब तो बोल्ड लाइन से करना और बोल्ड लाइन बना देना। और अगर ए और बी यहाँ पे दोनों है, एंड है ना, तो खाली ए यूएन में हो और बी यूएन में ना हो, या बी यूएन में हो ए यूएन में ना हो, या दोनों ही यूएन में ना हो लेकिन उनका डिफरेंस यूएन में हो, तब हम उस एज को डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक। तो यही जो ग्राफ है वो साइन ग्राफ बन जाएगा, जिसमें कुछ एज जो है वो बोल्ड दिखेंगे, कुछ एज डॉटेड दिखेंगे ड्यू टू दिस कंडीशन। देखो, अरे ये है ना, Z11 पे बना हुआ है, Z11 पे तो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 0 से 10 तक एलिमेंट्स होंगे। और देख, यूनिट में अगर एलिमेंट्स होंगे जैसे 0 10 है ना, 10 जो है वो, मतलब दो एलिमेंट्स पॉजिटिव लाइन से जब भी ज्वाइन होंगे जब दोनों एलिमेंट यूनिट के हो, तो 1 और 9 दोनों यूनिट के 1 और 9 11 से को प्राइम है, 1 भी को प्राइम है 11 से, 9 भी, तो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप ये पूरा ग्राफ बना सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, with the help of this condition and this condition, ठीक है। तो ये बनेगा। अभी किसी को डाउट है इसमें, अभी तक में किसी को डाउट है इसमें, कोई पूछना है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो चल नो मैम। इट्स ओके, ओके देन ये हमने ये इसको ऐसे कर लिया। तो आप देखो ये मतलब पढ़ने पे आपको ज्यादा अच्छे से आएगा, लेकिन और ग्राफ थ्योरी रीड करने से और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, अब मतलब कि ये क्या बना, यूनिटरी कैलेग्राफ, ठीक है, यूनिटरी साइन कैलेग्राफ जो कि 11 वर्टिसेस पे बना है, जो कि Z11 पे बना है, ठीक है। फिर इसी हिसाब से यूनिटरी एडिशन कैलेग्राफ भी होता है। तो यूनिटरी एडिशन कैलेग्राफ में क्या करते हैं कि वर्टिसेस तो Zn लेते हैं, लेकिन दो लाइन जब भी जोड़ते हैं अगर उनका सम यूनिट में हो, यूनिट में बता दिया, यूनिट क्या होता है, जब वो एलिमेंट होंगे इस सेट में जो कि n से को प्राइम हो। तो एक अगर A are adjacent if and only if A plus B belongs to UN, यानी both A and B must be the element of UN, तब ये होगा। अगर A plus B UN में हो, लेकिन अब इसका सिग्नेचर बनाना है, मतलब इसको डॉटेड में बनाना है, तो ये होगा, इसके सिंबल है, ये याद नहीं रहेगा अभी, पर आप बाद में देख के याद करना अगर अपनी तरफ से कुछ और बनाना है तो, ठीक है। तो साइन में क्या किया कि दो एज ए बी का साइन प्लस किया अगर दोनों ए और बी यूएन में, ये एडिशन में है, ये देखिएगा ये पीछे वाले से डिफरेंट है, यहाँ पे ए प्लस बी है, पीछे में था ए माइनस बी बिलोंग्स टू यूएन, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि प्लस इफ एम एन माइनस, अगर दोनों ए और बी यूएन में बिलोंग करते हैं और ए प्लस बी यूएन में बिलोंग करता है तभी तो लाइन होगा, और फिर वो लाइन बोल्ड से दिखेगा, और नहीं तो ए और बी, ए प्लस बी यूएन में बिलोंग करता है लेकिन ना ए
या तो ए नहीं बिलोंग कर रहा है यूएन में, या बी नहीं बिलोंग कर रहा है यूएन में, या ए और बी दोनों यूएन में नहीं बिलोंग कर रहा है, तब वो लाइन डॉटेड दिखेगा। ठीक, तो एन अगर Z5 Z6 Z10 पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल बना हुआ है, तो ये आप लोग अगर देखेंगे बाद में तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है। तो अब आते हैं हम कि एल्गोरिदम। अब ये है कि अब मैंने कहा ना कि टाइम इम्पोर्टेंट होता है, तो एल्गोरिदम हर चीज का ना, ये आजकल ऐसे नहीं है कि हाथ से कर लिया कुछ लिया, आजकल सब कुछ कंप्यूटर ओरिएंटेड हो गया, सब कुछ कंप्यूटर, मतलब इवन आप क्या नाम कहते हैं, आप आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वहां पे भी अगर कंप्यूटर नहीं आपने, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन, एवरी सब्जेक्ट एवरीथिंग हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो फिर कंप्यूटर में एल्गोरिदम, मतलब जो मैथ्स कंप्यूटर कॉमर्स ये सब वाले हैं जो और या साइंस वाले, वो तो बिल्कुल कंप्यूटर के बिना बिल्कुल भी है कि हैंडीकैप है। तो अब कंप्यूटर में क्या, तो कंप्यूटर में क्या चीज इम्पोर्टेंट है जी, एल्गोरिदम इम्पोर्टेंट है। यस, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू से? यस, ओके, आई थिंक देयर वाज सम। तो ये क्या हुआ कि एल्गोरिदम, जो कि एल्गोरिदम इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ये एक प्रोसीजर होता है या फॉर्मूला होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, कि मतलब मैंने ये बता दिया कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये नहीं हुआ तो ये करना है, ये नहीं हुआ तो ये करना है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। और इसको एक अच्छे से प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि ये आराम से कंप्यूटर में रन हो जाए। ठीक है, तो ये किसके नाम पे पड़ा था? दिस वाज डिराइव्ड इन द नेम ऑफ मैथमेटिशियन मोहम्मद इज़्मुज़ा अल ख्वारिज़मी, जो कि रॉयल कोर्ट ऑफ बगदाद के मेंबर थे। एंड ये 780 BC टू 850 BC तक इनका ये था। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन था। तो कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, कैसे जाना है आगे, कैसे जाना है आगे, कैसे जाना है। एंड इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड रीजनिंग। तो डेटा, जब आपके पास खूब सारी डेटा है तो उसको प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कैसे रीजन देगा, अपने आप ये रीजनिंग कर ले। ठीक है, तो ये सब हम कंप्यूटर में फीड करेंगे प्रोग्राम के फॉर्म में, सो दैट ये खुद ही कर ले, ज्यादा हमें काम ना करना पड़े। लेकिन काम हम ही कर रहे हैं, हमने काम को अपना काम बढ़ा के और खूब काम, मतलब खूब मेहनत करके, खूब सारा वो उसके ऊपर स्टडी करके हमने एक प्रोग्राम बना दिया, अब उसको कंप्यूटर में डाल दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा हमसे, क्योंकि दूसरों के लिए तो वो तुरंत तुरंत रिजल्ट दे देगा, पर इसके पीछे भी हम ही ने काम किया होता है। ठीक है, तो ये है एल्गोरिदम। अब अब ग्राफ को, कोई भी ग्राफ है, जैसे जो मैंने इसको तो ग्राफ बोल रही हूँ ना, इसको ग्राफ बोल रही हूँ, तो इसको ग्राफ को, ये सारे ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ को कंप्यूटर में कैसे डालेंगे, है ना, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे काम करना है। तो तो कई तरीके के वो, कई देर आर सेवरल वेज टू स्टोर ग्राफ्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हम कई तरीके से ग्राफ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ग्राफ स्ट्रक्चर कैसा है। हैवी स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे, मतलब वर्टिसेस कम है और लाइंस बहुत ज्यादा हैं, कभी कभी वर्टिसेस कम होंगे और लाइंस भी कम होंगे। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वाला, मतलब कई तरीके से हम ग्राफ को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो वो डिपेंड करेगा कि हैवी स्ट्रक्चर है या स्पार्स स्ट्रक्चर है। तो उसको हैवी को डेंस बोलते हैं, डेंस और स्पार्स स्ट्रक्चर फॉर मैनिपुलेटिंग द ग्राफ। थियोरेटिकली वन कैन डिस्टिंग्विश। अब एक जो है, एक तो लिस्ट स्ट्रक्चर से हम स्टोर करते हैं, एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से। ठीक है, बट कॉन्क्रीट एप्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों का ही जरूरत पड़ जाता है, कभी लिस्ट में, कभी मैट्रिक्स और लिस्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे लिस्ट स्ट्रक्चर्स जनरली प्रेफर्ड होता है स्पार्स ग्राफ में। स्पार्स ग्राफ में जहाँ वर्टिसेस और ग्राफ बिल्कुल, मतलब जहाँ वर्टिसेस जितने भी लाइंस उससे भी कम हो।
या उतने ही बराबर हो जाता है तो स्पार्स दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। अगर लाइंस वर्टिसेस के मुकाबले ज्यादा हो तो खूब सारा डेंस दिखता है। तो क्योंकि list structures often preferred for the sparse graph because इनके लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट, उसमें मेमोरी होता है तो मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दूसरा वाला अगर उसमें स्टोर करना चाहेंगे तो ये जल्दी एक्सेस देगा फॉर सम एप्लीकेशन, बट इसकी मेमोरी ज्यादा होती है। तो अब किसी में कुछ एडवांटेज है, किसी में कुछ एडवांटेज है, लेकिन अगर हमें हमारा प्रोसेस बहुत लंबा है तो कहीं पे हम लिस्ट यूज कर लेंगे, कहीं पे मैट्रिक्स यूज कर लेंगे, क्योंकि एडवांटेज भी अपना अपना है ना, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक मतलब एक तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द साइन ग्राफ। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आगे। ये कह रहे हैं कि यहीं पे है, यहीं पे बताते हैं कि ऑफ द कोई भी साइन ग्राफ जिसमें कि एजेस डॉटेड या बोल्ड हैं और वर्टिसेस एन है, तो वर्टिसेस को अगर हम v1 v2 vn कर लें, पैरेलल एजेस तो मतलब कि एक दो वर्टेक्स के बीच में दो लाइन। तो अभी हमने तो मैंने किसी एग्जांपल में लिया नहीं है, पर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या जो जिन्होंने ग्राफ थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा पैरेलल एज। तो ये तो मैथ्स के हैं नहीं, यहाँ तो डिफरेंट ग्रुप है, तो इसलिए मैं पैरेलल एज अभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम v1 v2 vn लेते हैं जिसमें कि एंड उसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, जिसके एलिमेंट्स होंगे -1 0 1, ठीक है। और तो ये कैसे, ये क्या है, ए आई जे क्या है, तो ये ऐसे मैं बताती हूँ अभी एग्जांपल से। ए आई जे मैं अभी तो ऐसे समझ लीजिए आप कि ए आई जे 1 होगा अगर वी आई और वी जे मतलब प्लस साइन पॉजिटिव है जो बोल्ड है जो, ए आई जे -1 होगा अगर वी आई वी जे नेगेटिव है जो मतलब डॉटेड है जो, और ए आई जे 0 होगा इफ वी आई और वी जे एज ही नहीं है। तो इसमें देखो आप एग्जाम्पल एक लूंगी, मेरे ख्याल से होना चाहिए। अ, अभी मैं इसको बताने से पहले मेरे को लग रहा है एग्जाम्पल बता देते हैं तो शायद थोड़ा सा आपको। 1 मिनट बस, आ गया एकदम। अच्छा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा ना कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स किस सबको पता है कि नहीं पता है, किसी को पता है मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं मैम। नहीं। तो मैट्रिक्स के लिए मैं एक सेकेंड आप लोग को बताती हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। जस्ट 1 मिनट में, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है ना ये। हम्म।
जस्ट 1 मिनट है ना, दिखा रही हूँ अभी मैट्रिक्स को। तो शेयर करने में ना समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शेयर करें इसको। कैसे दिखाऊं? जस्ट 1 मिनट मैं अब ट्राई करती हूँ, नहीं हुआ तो फिर मैं रहने दूंगी, है ना, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज ये तो हो नहीं रहा। हाँ देखो, दिख रहा है कुछ? हाँ ये दिखा। यस मैम। हाँ अब, हाँ ठीक है, चलो शायद ये चल जाए तो। तो इसमें क्या है ना कि ये जो है, सॉरी ये कहाँ से यहाँ पे, अच्छा, ये अब दिख रहा है ना साफ? ठीक। तो इसमें क्या है ना, ये क्या बात है, ये तो मैं इतना परेशान हो रही थी तो बहुत आराम से दिख गया। तो ये है कि अगर दो वर्टेक्स वी आई वी जे में होगा तो हमने क्या 1 कहा और 0 मैंने -1 भी कहा है ना। तो पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स बताती हूँ कि जैसे स्क्वायर होगा, n एलिमेंट्स है ना, तो ए इसको पहले वाले को A11 ए पहला रो इसको बोलेंगे, तो A11 A12 A1n A21 A22 A2n और AN1 AN2n है, तो ये स्क्वायर की तरह से होगा, ठीक है। तो अब ये जो 1 1 बता रहा है कि V1 एडजेसेंट टू V1, तो V1 जो है वो V1 और V1 के बीच में लाइन तो है नहीं, हमने V1 VI और VJ जब भी लाइन जोड़ा है जब ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो डायगोनल सारे 0 होंगे। और ये मतलब है कि V1 और V2 जुड़े होंगे तब यहाँ पे 1 होगा, और V1 V2 जुड़े होंगे बोल्ड लाइन से तो 1 होगा, V1 V2 अगर जुड़े होंगे डॉटेड लाइन से तो -1 होगा, और V1 V2 अगर जुड़े नहीं होंगे तो यहाँ 0 होगा। इसी तरीके से ये पूरा मैट्रिक्स बनेगा, इसको कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। समझ गए आप? और बताऊं इसमें, इन द एडजेसेंट ये 0 अगर होगा इसके बीच में, ये सारे हमने ए उसको ए आई जे बोल दिया कि आई भी जो है वो n तक वेरी करेगा, 1 से लेकर n तक, और जे भी 1 से n तक वेरी करेगा, ठीक। तो इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं। Yes, now I think I should come back to previous this thing. 1 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
Yes, so are you able to see this now? Okay. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में उन्होंने बताया कि एडजेसेंसी, यही मैंने यहाँ बताया था कि आई जे 1 होगा अगर वी आई वी जे ज्वाइन होगा पॉजिटिव एज से, मतलब ए आई जे जनरल एलिमेंट है, तो आई वो 1 से n तक है, जे भी 1 से है, तो A11 A12 A13 A21 A22 और इस तरीके से, ठीक है। और एज नहीं होगा तो वो 0 होगा, और बोल्ड लाइन से जुड़ा होगा तो प्लस होगा। अब आते हैं हम इसको कैसे क्रिप्टोग्राफी, मतलब जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का टुगेदर जो प्रोसेस है उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। पुराने जमाने से था कि सीक्रेट कम्युनिकेशंस जो हैं उसको मिलिट्री ऑफिसर्स को जैसे कई चीजें पास करनी थी तो वो सीक्रेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, दूसरे को पता ना चले या दुश्मनों को पता ना चले, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्रिप्टोग्राफी बहुत पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। आज के एडवांस एज में जब इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो हमारी कई चीजें जो हम चाहते हैं कि वो सिक्योर रहे, दूसरों को, मोबाइल में चाहती हूँ मेरे मोबाइल डेटा कोई देखे तो उसको पता है तो मैं लॉक करती हूँ, है ना, कई लोग लॉक करते हैं इस टाइप से। तो इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। ओवर टाइम as data security continues to evolve and new ways to break the confidential communications are being discovered। अब नए नए तरीके, मैंने बताया ना कि सिंपल तरीका तो मतलब सिंपल में कई थोड़े दिन चलता रहता है वो सिंपल, उसके बाद फिर उसमें कोई ब्रेक, कोई किसी को पता लग जाता है अच्छा ये तरीका है तो निकाल लेंगे, तो फिर अब उसके ऊपर फिर काम करना शुरू कर कि नहीं नहीं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाए कि कोई इसका इसको तोड़ ना पाए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कोड करें या इस तरीके से लॉक करें कि जल्दी से इसका 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 इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ठीक। तो इट इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि जो इंफॉर्मेशन जो मैं अपने आप तक ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ या कुछ ग्रुप में रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उसको कोडेड डेटा के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, सो दैट कैन सिक्योरली अराइव एट इट्स एंड विदाउट स्पेलेज, मतलब कि वो जिसको मैं भेजना चाहती हूँ उसके पास पहुंच जाए और ज्यादा उसके ऊपर मतलब उस और बीच में लीक ना हो, ठीक है। तो जनरली ये बहुत पहले से वॉर टाइम, मैंने बताया ना शुरू में कि वॉर टाइम के में यूज हुआ था, और आफ्टर 2000 ईयर्स इसने फिर से अब ये खूब सारा मतलब जो उस समय यूज किया था वो इस समय दोबारा से इसके ऊपर खूब काम करने चलने लगा है कि कैसे क्रिप्टोग्राफी, मतलब कि कैसे लॉक लॉक करें इंफॉर्मेशन को, ज्यादा डी मतलब कोई जल्दी से डिकोड ना कर पाए, क्योंकि आजकल लॉकिंग मतलब कि कंप्यूटर से कंप्यूटर में एल्गोरिदम बनाना उसको लॉक कर देना। तो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इज हाईली कनेक्टेड विद, ये जो मेरा जो टॉपिक है ना ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है, तो जो आज जो क्रिप्टोग्राफी के काम कर में जो हो रहा है वो सब बहुत तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो है ही, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जहाँ जहाँ कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा डिस्क्रीट से निकालो जी, वो निकल आएगा, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन निकलता है, तो ये बहुत ही क्रीम सब्जेक्ट है। क्रिप्टोग्राफी क्या कहते हैं, मतलब मायने भी पता होना चाहिए। इज अ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद डेवलपिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी फैसिलिटीज, मतलब आप वो उसमें सिक्योरिटी फैसिलिटीज जो इंफॉर्मेशन में डालेंगे विद ऑगमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस माने कि हम उसमें लॉक कैसे करेंगे, उसमें उसके अंदर इनबिल्ट किया जाता है। और क्रिप्टो एनालिसिस, ये सब टिपिकल टर्म्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, जो जो ये टॉपिक पढ़ेगा मतलब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से सारी ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको क्रिप्टोलॉजी भी उसी से है, तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम पहले ही बता चुके हैं। द प्रोसेस एनक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल मैसेज इनटू कोडेड फॉर्म इज कॉल्ड द एनक्रिप्शन, और अगर हम डिकोड करते हैं तो दैट विल बी द रिवर्स प्रोसेस एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिक्रिप्शन, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट जो है, जो जिस चीज को मैं
कोड करना चाहती हूँ उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। मेरा ये इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है और मैं भेजना चाह रही हूँ, तो मैं जो पहले जो इंफॉर्मेशन है वो प्लेन टेक्स्ट, जस्ट वन सेकंड है ना। हाँ एक्चुअली मैं एक लेक्चर में हूँ, मैं बाद में, ठीक है ओके। तो प्लेन टेक्स्ट इज नॉन एन्क्रिप्टेड में से ये जो, हाँ प्लेन टेक्स्ट मतलब जिस इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वो प्लेन टेक्स्ट हुआ। फिर जो जिसमें कोड लग, वही प्लेन टेक्स्ट पे जब हमने कोड कर दिया तो उसको हम कहेंगे विद हेल्प, वो जिस कोड कर दिया तो हम उसको साइफर टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे एनक्रिप्शन बाय एनी एनक्रिप्शन टेक्निक। बहुत सारे तरीके से एनक्रिप्शन किया जा सकता है, तो बहुत सारे टेक्निक है, इतना डिटेल में मैं जाऊंगी नहीं, मैं तो अपना साइन कैलीग्राफ से आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो this part presents the development of an encryption decryption scheme that utilizes a signed calligraph along with private symmetric key to secure, encrypt and decrypt the edges of the graph। मतलब कि हम अब क्या है, अब जब हम करने जा रहे हैं, हम एजेस पे हम मान रहे हैं कि जो मेरा ग्राफ है उसके एजेस पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं और उसके एजेस पे इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को हम सिक्योरली ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो कई जब बहुत पहले से नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव यूज्ड ग्राफ्स एज अ टूल, जिसमें मतलब ग्राफ, जो मैंने ग्राफ बनाया पीछे एग्जांपल दिया उसमें फॉर एनक्रिप्शन एंड देन उससे साइफर टेक्स्ट को, मतलब एनक्रिप्शन, जब हम एनक्रिप्शन कराएंगे तो प्लेन टेक्स्ट में अगर हमने कोड कर दिया तो वो प्रोसेस को एनक्रिप्शन बोलेंगे। एनक्रिप्शन से जो हमें नया कोडेड मैसेज मिला उसको हम बोलेंगे साइफर टेक्स्ट, है ना। तो फॉर प्रोड्यूसिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट फॉर जनरेटिंग, अब ये सब डिजिटल सिग्नेचर में भी यूज होता है, हैश फंक्शन में भी होता है। आप जानते हो डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका हो ना, तो अगर कोई मतलब कोई और उसको खोलना चाहे ना, मतलब वो फॉर्ज करना चाहे तो वो होगा ही नहीं, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं अपने आप से जैसे सिग्नेचर करके उसका स्टैम्प बना लूं तो नहीं, अगर मैंने डिजिटल बनाया है तो मेरा को कोई हैक नहीं करेगा, करेगा तो वो कंप्यूटर में करेगा। अगर हम जैसे हम सिग्नेचर करके भेजते हैं डिजिटल सिग्नेचर, तो कोई और अगर उसको साइन कर ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना, तो वो ब्लर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है, ये सब एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन से बना है, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्या क्या। तो अभी हमने क्या किया, अब जो मैं कैलीग्राफ से करना चाह रही हूँ, यूनिटरी कैलीग्राफ साइन ग्राफ से, the message is a novel approach that utilizes the structure of message itself. In this approach, the message is represented by a sign graph, vertex, edge और edge के ऊपर sign है प्लस माइनस, एंड इंफॉर्मेशन एज जैसे मैंने बताया कि वो एजेस पर है, एजेस पर इंफॉर्मेशन है। तो मेरे को वो एज पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा ना, मेरे को उसको सिक्योर रखना। तो उसको सिक्योर रखने के लिए मैं क्या करूं, बाय डूइंग सो द इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली एनक्रिप्टेड, मतलब सिक्योर करूंगी मतलब कोड हो जाएगा, बट ऑल्सो डिस्गाइज विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज। ये इसका यूनिक एडवांटेज ये होगा कि ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन मेथड से थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। दिस प्रपोज मैकेनिज्म को पोटेंशियली प्रोवाइड एनहांस सिक्योरिटी, मतलब ज्यादा मतलब क्योंकि ये ब्रेक कोई नहीं कर पाएगा तो एनहांस सिक्योरिटी हो गया, एंड प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड हैज प्रॉमिसिंग, मतलब इसका जो इस टाइप से अगर हम, मतलब अभी तो मैंने ये एग्जांपल लिया है यूनिटरी साइन ग्राफ का, लेकिन दूसरे भी ग्राफ्स यूज कर सकते हैं। तो ग्राफ डिफरेंट, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तरह तरह के ग्राफ्स हैं, और उसके बीच में एजेस कैसे जोड़ना है, ये करना है, वो करके भी हम नए नए क्रिप्टो एनक्रिप्शन स्कीम बना सकते हैं। तो यही वो यहाँ कह रहे हैं। अब आते हैं हम अपने एग्जाम, अब हम कैलीग्राफ यूज करने जा रहे हैं। तो हमारा कैलीग्राफ किस पे था, ZN पे था ना, तो मैंने वर्टेक्स ले लिया 0 1 2 अप टू N1 -1,
और उसमें कुछ एजेस होंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी कैलीग्राफ एज दो वर्टिसेस के बीच में तभी था जब उनका डिफरेंस यूएन में बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो वो एजेस जो भी जिसका भी डिफरेंस उन एजेस का नाम है E1 E2 EM1। तो उसमें M1 एजेस हैं और N1 वर्टिसेस हैं। तो इसके ऊपर कैलीग्राफ इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर कैलीग्राफ डिफाइंड है जैसे हमने पहले डिफाइन किया था। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे वो इंफॉर्मेशन कैलीग्राफ मतलब कि जिसमें मैंने क्या किया कि मेरे पास यूनिटरी कैले साइन ग्राफ है जिसमें मैंने क्या वर्टिसेस क्या लिए 0 1 2 अप टू मेरे वर्टिसेस ZN1 है, यानी कि मेरे वर्टिसेस हैं 0 1 2 3 अप टू N1-1 और उसके एजेस क्या हैं, एजेस वो होंगे दो वर्टिसेस तभी ज्वाइन होंगे अगर उनका डिफरेंस UN में बिलोंग करता है। UN क्या था, UN1 में बिलोंग करेगा, जो मतलब कि व्हेन जो एंड वर्टिसेस हैं वो जो जो दो वर्टिसेस जिसको जोड़ के आप लाइन बना रहे हो वो दो वर्टिसेस दोनों UN में बिलोंग करें, मतलब कि दोनों वर्टिसेस प्राइम हो UN से, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि अब मुझे एनक्रिप्ट करना है, मतलब यूनिटरी जैसे बनाते हैं आपने बना लिया उस वर्टिसेस पे, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व डिफाइनिंग, अब इसी पे मैं न्यू साइन ग्राफ बना दूंगी एस डैश बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग साइन ग्राफ एस एंड एस एन वी कंस्ट्रक्ट एस डैश एज फॉलोज। उसका वर्टेक्स सेट तो मैं वही रखूंगी, पिछले बार का वर्टेक्स तो वी डैश था, नया मैंने नया साइन ग्राफ बना रही हूँ तो मैं उसका वर्टेक्स सेट सेम रख रही हूँ और ई डैश मैं नया बनाऊंगी डिफाइंड एज ई डैश इज इक्वल टू ई प्लस E1, ठीक है। क्या किया गया है कि where E is the edges of the sine calligraph SN and E1 is the set of the edges of the sine graph S। तो अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या है कि मेरे पास एक आर्बिट्रली साइन ग्राफ गिवन है, भाई मेरे पास कोई साइन ग्राफ गिवन है। अब मैं साइन ग्राफ मैंने पहले ग्राफ में कुछ वर्टिसेस होंगे, मान लो वो साइन ग्राफ 10 वर्टिसेस पे था, तो मैंने क्या किया कि एक नया ग्राफ अब साइन ग्राफ बनाने जा रही हूँ जिसके नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 है, मतलब इसका एक साइन ग्राफ 10 ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ साइन ग्राफ है बस, ठीक है। मैंने उसके ऊपर दूसरा साइन ग्राफ बनाया जिसके भी नंबर ऑफ वर्टिसेस मैंने वही लिया जो पहले वाले 10, इसका 10 था इसका भी 10 ले लिया, ठीक है। इसके एजेस कुछ थे, इसके एजेस कुछ हैं, जो साइन ग्राफ जो आपने लिया जिसमें इंफॉर्मेशन है उसके एजेस कुछ भी हैं। मैंने इसके एजेस को मैंने क्या किया कि इसके एजेस कैसे बन रहे हैं यूनिटरी साइन कैलीग्राफ का, ड्यू टू द प्रोसीजर कि दो दो पॉइंट तभी ज्वाइन होंगे जब उनके बीच का डिफरेंस ZN में बिलोंग करेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों, इसका भी वर्टेक्स वही है इसका भी वर्टेक्स वही है, इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, तो यानी कि 1 को 1 के ऊपर रख दिया, 2 को 2 के ऊपर रख दिया, 3 को 3 के ऊपर रख दिया। तो अब इसके एजेस जो हैं, इसके जब अब जो नया साइन ग्राफ बना उसके कितने एजेस हो गए, एज ऑफ द साइन ग्राफ, टोटल नंबर ऑफ एज ऑफ द साइन ग्राफ और टोटल नंबर ऑफ द एज ऑफ द यूनिटरी साइन ग्राफ। तो इसके दो एजेस और फिर वो नया एक स्ट्रक्चर बन गया, उसका एज हमने बोल दिया उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे इनका प्लस होगा और ये वो उसको हम ई डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो ये होगा जैसे ये था, अब ये देखो एग्जांपल है कि जैसे ये ग्राफ है आपका साइन ग्राफ, ठीक है। ये एक है जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, एक साइन ग्राफ है, मैंने इसमें वर्टिसेस कितने हैं, इसमें 6 वर्टिसेस हैं। तो मैंने इसी पर एक और साइन ग्राफ बनाया, कैसे, ये बनाया बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ साइन कैलीग्राफ। मैंने 0 1 2 उसी वही वर्टिसेस ले लिए, 0 5 क्योंकि ये Z6 पर बना हुआ है तो 0 5 से जुड़ेगा,
04 से नहीं जुड़ेगा, 3 से, ये उसका यही बनेगा। इत्तेफाक से ये दोनों एक ही जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, पर जरूरी नहीं है एक जैसा बने। ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। मैंने बस इससे कुछ नहीं लिया, सिर्फ इसके वर्टिसेस लिए, और इसके वर्टिसेस पर मैंने मतलब Z6 लिया और Z6 पर यूनिटरी साइन के लिए ग्राफ बना लिया। अब क्या करना है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ साइन ग्राफ एस डैश बनाया, बाकी देखो ऐसे कर दिया। बाहर वाला पहला साइन ग्राफ है, अंदर वाला जो दूसरा है, मेरे ख्याल से बाहर वाला हाँ, बाहर वाला जो है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, अंदर वाला जो है जो मैंने यूनिटी। अब मैं जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करूंगी ना तो इसके फॉर्म में करूंगी। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये मल्टीग्राफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एज के दो वर्टेक्स के बीच में एक ही लाइन होना चाहिए, पर यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन है, इसको मल्टीग्राफ साइन ग्राफ कह रहे हैं एस डैश से। फिर क्या किया, अब हमने एक की, अब मुझे भी उसको भी और लॉक करना। तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन ट्रैपडोर की फंक्शन है, ठीक है, उसको मैंने इसके ऊपर लगाया, इस ई डैश पे लगाया। ई डैश में कितने एजेस हैं, ई डैश में इतने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं, उस पे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखो कैसे लगा, इसको कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये एज है, कोई भी एज है जिसका एक तरफ का वर्टेक्स वी आई और दूसरे तरफ का वर्टेक्स वी जे है, तो उस पे मैंने ये फंक्शन लगाया दो तरीके से। अगर वो यूएन को बिलोंग कर रहा है, मतलब इफ V1 और V2 यूएन को बिलोंग कर, V1 VI और VJ यूएन को बिलोंग कर रहा है, तो इसको टाउ VY VI VJ टाउ 1, मतलब इस फंक्शन को भी दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया। और अगर इसको बिलोंग कर रहा है, अगर यूएन को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो मैंने इसको टाउ 2 फंक्शन से डिफाइन कर दिया। तो अब क्या कह रहा, अब ये जो फंक्शन है टाउ 1 टाउ 2, ये भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो as previously mentioned, the information in the sign graph S is stored in its edges. Therefore, in study of an encryption scheme is being applied to the edges. अब क्योंकि मुझे अब एज पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो हम एनक्रिप्शन जो लॉकिंग है वो एज पर ही अप्लाई करेंगे इन एस डैश में, जिसमें कि डबल एजेस हो गए हैं। तो एनक्रिप्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द वेट्स प्लस माइनस, उसको वेट बोल रहे हैं। तो अच्छा चलो, अभी मेन जब आएगा, इससे पहले मैं एक बार आप लोग से पूछूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है? यस, कुछ कोई बोलेगा? कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं? जी मैम नमस्ते। आ रहा है मैम। हेलो। हाँ जी बोले। जी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैम। हाँ जी, पूछो। हेलो। मैं ये कह रहा था कि ये अभी जो लेक्चर दिया जा रहा है वो उसका प्रयोग कोई भी लिटरेचर का विद्यार्थी या शोधार्थी किस प्रकार से अपने शोध में कर पाएगा? अगर लिटरेचर का आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं? जी। तो क्या है कि लिटरेचर में भी आपको अभी कोई आप मतलब ना, आप लिटरेचर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आपको कहीं ऐसी जॉब लगे जहाँ पे आपको लिटरेचर की चीजें ही आपको मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कॉन्फिडेंशियली आपको ट्रांसफर करना, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी करने के भी है, तो वो ये कॉन्फिडेंशियलिटी जहाँ पे भी होगा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि आपको किसी एक ऐसे लोग हेल्प लेना पड़ेगा जो इस चीजों को जानते हैं, आप खुद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस अब होता है, तो आपको अगर ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छा ही है ना, ठीक है। कई चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए होती हैं, तो अगर आपके लिटरेचर में तो भी कुछ ऐसा, आप उसको भी इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और कोई पूछना चाह रहा है? गायत्री चौहान, आप कुछ पूछेंगे? No, ma'am.
ओम गुंजाल, ओम गुंजाल। यस मैडम। हाँ जी, कुछ पूछना है? ना मैडम, नो, कुछ नहीं पूछना मैडम। सचिन कनौजिया, कनोलिया, कनौजिया, सचिन। आप लोग ने हाथ उठा रखा है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ तो मैम ऐसे ही अटेंडेंस के लिए उठा लेते हैं ये सब। अच्छा अच्छा हेलो बोलने के लिए करते हैं मैडम। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो अब मैं वापस आती हूँ इस पे, है ना, ठीक है। तो बट मैम एक क्वेश्चन। हाँ जी प्रियंका। मैम जैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन आप बता रहे हैं उसको हमारे लाइक मेरा स्टडी है ना, मोस्टली स्पोर्ट्स में कंपैरेटिव स्टडीज होता है मैम। तो उसमें तो सिंपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और सिंपल चार्ट से हम लोग उससे शो कर देते हैं। मतलब इतना ये बड़ा डिफिकल्ट लगा जो आपने वेब वाला बताया। एक्चुअली क्या है, मुझे अभी ये नहीं पता था कि ऑडियंस लिटरेचर और स्पोर्ट्स और सब में होंगे, लेकिन ये है अच्छा। मतलब। लेकिन क्या है ना कि रिसर्च स्टूडेंट्स को ना हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। तो जनरली क्या है कि ये वो चीजें हैं जिसमें आप देखो, मोटे तौर पे तो भाई प्रियंका ये है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर डालनी है और उसको कॉन्फिडेंशियल भी रखना है, तो उसको कैसे लॉक करेंगे, ठीक है। एक हाँ आप जी। उसको, तो अब हर जगह, अब अगर आपको ये सब चीजें पता है तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए आपको किसी तरीके की, मतलब जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो एटलीस्ट आप बोल जानोगे तो कि हाँ कुछ ऐसी चीज होती है। मैं मतलब किस कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास जाऊं, मैथमेटिशियंस के पास जाऊं, तो वो भी खुद नहीं बता पाएगा, तो वो आपको स्पेशलिस्ट के पास बस भेज देगा कि भाई वहां पे आप इस चीज को, इसका सोल्यूशन निकाल पाएगा, है ना, ठीक है, ओके। तो यस। अब मैं, ठीक है, चले आगे फिर। तो मैं आती हूँ इस पे। तो हमने क्या किया कि हमने दो, एक जो इंफॉर्मेशन जिसमें थी और जिसमें जो नया हमने उसी के ऊपर यूनिटरी कैले साइन ग्राफ बनाया, एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमोस कर दिया, सो दैट हमें नया ये मिल गया, ओके। नया साइन ग्राफ मिल गया, मैंने एग्जांपल से भी दिखाया था। तो ये, उसके बाद क्या, अब ये प्रोसेस बताया खाला, हालांकि मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगी कि फिर उसका इन्वर्स लेंगे और फिर वापस से फिर मतलब जो डिकोड भी तो करना होगा, भाई कोड तो कर दिया, फिर डिकोड भी, तो उसके लिए टाउ इन्वर्स लेंगे, उसमें टाउ 1 इन्वर्स, टाउ 2 इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो ये है आपका। तो इसमें देखिएगा, इसके लिए एल्गोरिदम भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये तो मैंने कहा ना कि हर चीज कंप्यूटर में जाना है, तो एल्गोरिदम भी है। तो पहले डिफाइन करेंगे कि मतलब एल्गोरिदम कंप्यूटर में कैसे डालेंगे कि 0 1 2 अप टू n, क्योंकि हमने n1 वर्टिसेस दिए थे, तो 0 1 2 अप टू n1 - 1। फिर e डैश e प्लस e1 लिया, add all the edges of the graph s to the sign to the graph sn। ये sn तुम्हारा यूनिटरी केएलए साइन ग्राफ है, so that मेरा नया साइन ग्राफ बनेगा। फिर उसको ट्रैप डोर की से उसमें टाउ को टाउ 1 और टाउ 2 sn पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट द की फंक्शन टाउ एज अ प्राइवेट की, तो ये प्राइवेट की हो जाएगा। तो मैं फिर मतलब ये एल्गोरिदम है, ये भी इतना आसान है, पहले इसको लिखना पड़ेगा तभी ये कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। फिर फॉर ईच एच बी आई वी जे, जो कि ई डैश में जो नए साइन ग्राफ में है, तो अगर आई यूएन में बिलोंग करता है, जे यूएन में बिलोंग करता है, तो हमने ये डिफाइन किया था, मतलब जो हमने डिफाइन किया था उसको वैसे नहीं रख सकते हैं, हमको लैंग्वेज एक होती है जिसमें लिखना होता है टाउ 1 वी आई वी जे। और अगर नहीं तो टाउ 2 डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये वेट है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ 2 वी आई वी जे। फिर डब्ल्यू को इस तरीके से एनक्रिप्ट करना है विद द की टाउ, तो सो दैट नया वेट डब्ल्यू डैश आ जाए। फिर इससे हमें नया साइन ग्राफ मिलेगा एस डबल डैश वी डैश ई डबल डैश, और वो हमारा जो एनक्रिप्टेड मतलब वो कोडेड ग्राफ होगा। तो ये चीजें भले से अभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो करेगा उसी को आएगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रोसेस चलेगा जब भी जाके आप पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं सोचती हूँ कि फिर उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। तो फिर उसमें टाउ जो फंक्शन आपने शुरू में कोड करने के लिए लिया था एज पर, उसको उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। कंप्यूट द इन्वर्स फंक्शन ऑफ टाउ फॉर ईच एज वी आई वी जे बिलोंग टू एस डबल डैश,
फिर उसको मतलब जो नए वाले जो कोडेड साइन ग्राफ में आया है उसको डिक्रिप्ट करके टाउ इनवर्स से डिक्रिप्ट करेंगे, जो कि जिसके पास पहुंचेगा उसी को पता होगा। फिर उसके बाद हम जो हमारा ओरिजिनल साइन ग्राफ है उसको हमें टाउ इनवर्स से मिल जाएगा। फिर हमें पता है कि कौन से एजेस जो हैं कैलीग्राफ को बिलोंग करते हैं उसको हम बाहर कर देंगे, तो फिर हमें जो ओरिजिनल साइन ग्राफ जिसमें कि मैसेजेस स्टोर्ड थे एजेस पर वो हमें मिल जाएगा, और दैट विल बी द एंड ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी अब मैं देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये एग्जांपल है, ये एजेस है जिसपे की मैसेजेस स्टोर्ड हैं, कोई भी साइन ग्राफ है, ठीक है, कोई भी, मतलब इसमें कोई केले फैले नहीं लगा हुआ है, बस ऐसे ही साइन ग्राफ है। फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर, अब इसमें वर्टिसेस कितने थे बच्चे, इसमें वर्टिसेस थे आपके 6। फिर मैंने इसके ऊपर नया साइन ग्राफ लिया, ये यूनिटरी साइन केले ग्राफ बनाया ड्यू टू द डेफिनेशन, जैसे मैंने डिफाइन किया था उसमें हर वर्टिसेस 0 किससे ज्वाइन होगा, वो सबसे ज्वाइन नहीं होगा, 0 बस वर्टिसेस उतने होंगे 6 जिसका नाम होगा 0 1 2 3 4 5, और फिर वो जुड़ेगा जिससे वो जुड़ के ये साइन ग्राफ बन रहा है। फिर क्या किया कि एक दूसरे पर हमने जब इसके ऊपर रख दिया तो हमें ये साइन ग्राफ मिल गया। ठीक है, जीरो अंदर वाला कोडेड है और अंदर वाला ओरिजिनल है, बाहर वाला कोडेड है। ठीक है, अब लेकिन हम अब ये पूरा जब 2 होंगे तो कोई ये नहीं समझ पाएगा ना कि किसमें मैसेज है, ये दोनों मैसेज कैरी कर रहा है, क्या मैसेज है ना, मतलब कंफ्यूजन रहेगा लोगों को बीच कंफ्यूजन। हाँ। तो फिर इसमें क्या किया, इसको नाम दे दिया E1, इस पहले वाले को अब इसको भी नाम देना है एजेस को, तो इसका नाम वर्टिसेस तो सेम ही है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 इस तरीके से नाम दे दिया सबको। ठीक है, फिर अब ये कोड, अब इसमें और कोड करना है। अब तो ये पहले तो मेरा एक ही था बाहर वाला साइन ग्राफ, अंदर वाला साइन ग्राफ जिसमें मैसेजेस स्टोर्ड है, मैंने इसको डबल ग्राफ बना दिया। डबल ग्राफ बनाने के बाद भी मुझे और कुछ करना है, जिससे कि कोई इसको मेरे को एक फंक्शन लगाना पड़ेगा टाउ इनके एजेस पर। ई डैश के एजेस कौन से हैं, ये वाले E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 मतलब E12 अप टू 12 एजेस। ठीक है, तो इसके ऊपर बनाया, तो मैंने क्या उसको 2 में, तुम्हें ध्यान होगा सबको कि मैंने 2 में डिवाइड किया था, टाउ 1 टाउ 2। तो मैंने कहा कि अगर VI और VJ अगर यूनिट में बिलोंग करता है तो मैं इस फंक्शन, ये अपने मन पे है, IJ मतलब कि 1 1 1 2 1 3 1 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बताया था ना, तो उसमें 1 1 1 2 अप टू 1 है, मतलब कि 2 1 2 2 2 n आएगा, 3 1 3 2 अप टू 3 n आएगा, क्योंकि n अगर है तो यहाँ n इज इक्वल टू 6 है तो 6 तक जाएगा ये। और दूसरे का ये भी अपनी मर्जी पर है, ये दोनों जो है अपनी मर्जी पर है। ठीक है, तो वेट ऑन द एज, तो अब क्या हुआ, जब मैंने ये लगाया तो जो मेरा E1 का जो होगा ना, E1, क्योंकि E1 में ये E1 जो था, E1 इसको मैंने माना था, E1 इसको, दैट वाज ड्यू टू 0 एंड 1, दैट वाज ड्यू टू 0 एंड 1। क्या 0 और 1 दोनों UN को बिलोंग करते हैं? 0 या 1 कोई भी UN को बिलोंग करते हैं तो हम पहला वाला फंक्शन करेंगे, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो हम दूसरा वाला। तो पहला वाला क्या था, तो ये पहला वाला ये इस हिसाब से, या तो दूसरा वाला ये, अगर दिस और दिस बिलोंग तो ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से ये टाउ E1 दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये पहले वाले फंक्शन से निकालिए, उसकी वैल्यू रख के। ठीक है, E2 E3 E2 के एंड वर्टिसेस क्या हैं वो वहां से देख के इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, और इसी तरीके से E7 E8 सारे सब, मतलब 12 सारे 12 की, अगर मतलब E7 इज ड्यू टू E7, आप देखो E7 में E7 अगर मैं पीछे जाऊं तो E7 इज ड्यू टू E7, आप देखते तो 3 4 और 3 से 4 और 3 से E7 बन रहा है।
अब 4 और 3 जो है 4 और ना तो 4 UN में है ना 3 UN में है, तो इसके ऊपर सेकंड फंक्शन लगेगा। तो इसीलिए इन्होंने E7 टाउ E7 में सेकंड फंक्शन लगा के ट्वाइस ऑफ -1 एंड -1 है ना। ये आप ये देखिए यहाँ पे इतना आसान नहीं है, इसको सारा करना पड़ेगा आपको, मतलब है ना। अब इनके बीच का वेट क्या था, ये वाला लगाया। अब इनके बीच का मतलब कि ये था क्या वैसे, तो ये हम फिर जाएंगे E7 पे, देखेंगे E7 में पहले ये था -1, ठीक है, तो इन्होंने -1 लगा दिया E7 में। इसी तरीके से सबका पहले तो वेट +1 -1 था, बाद में हमने ये चेंज करके देखो अब सबके वेट चेंज हो गए। अब 1 का 1 हो गया, E2 का 11 हो गया, E3 का, क्योंकि इसमें या तो पहला वाला या दूसरा वाला, जैसे E1 देखें तो E1 में आप आते हैं पीछे, E1 देखें तो E1 ये था, आप लोग ये देखो E1 0 1 से था, तो 0 या 1 किस में बिलोंग कर रहा है। E1 एक ये है, एक ये वाला है, तो पहला वाला देखेंगे 0 1, 0 1 या तो 1 उसमें बिलोंग करना चाहिए या 0 उसमें UN में बिलोंग करना चाहिए। तो ये बिलोंग कर रहा है, एक ना एक बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने पहला फंक्शन लगाया इसमें 5 ऑफ, और क्योंकि वो माइनस साइन था तो एज का डॉटेड था ना, तो -1 + 6, और 5 ऑफ -1 + 6 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1 + 6। इस तरीके से सारे का कैलकुलेट किया। जब कैलकुलेट किया मेरे को ये नए वैल्यूज आ गए, तो अब मेरा नया नया जो ग्राफ जिसको मैं सेंड कर रही हूँ वो ये है। देखो E1 का 1 था, अभी मैंने वर्क करके करके दिखाया 1 था। इसी तरीके से ये जो नया था, इस ये वाला जो भी एज था, ये कौन सा एज था, ये था दूसरा वाला था यहाँ से जो बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, फिर ऐसे ही बता पाऊंगी। E2 पे फंक्शन लगा के, अब पहले E2 +1 था, ये देखो पहले E2 था, E1 था -1, E2 +1 था, अब E1 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। अब E1 ये सारा करके अब मैंने E1 को क्या कर दिया, E1 को 1 कर दिया, मैसेज अब 1 हो गया, इसका 11 हो गया। इसी तरीके से ये सारे एजेस को मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ, ये सारे कैलकुलेट करके इस पे लगा दिया, ठीक है। तो ये एनक्रिप्टेड एस डबल डैश हो, अब ये एनक्रिप्टेड मतलब कि अब ये पूरा ही कोडेड हो गया। आप देखो ग्राफ ही चेंज हो गया, मैसेज भी अलग अलग हो गए सारे, क्या है मैसेज है, अलग मैसेज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद डिक्रिप्शन लगाएंगे, तो फिर मैंने कहा इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो पहले था 5Wij माइनस 1/5Wij माइनस 6, 1/2 ये हो जाएगा। जब ये होगा तो जब इन्वर्स से जब हम लगाएंगे, जब ये पहुंच जाएगा जिसके पास मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, तो वो इन्वर्स लगा के सारे एजेस का वेट निकाल लेगा फिर से। तो देखो अब सारे वेट +1 -1 में ही आएंगे, क्योंकि इन्वर्स लगा दिया। तो अब इसको वर्टिसेस फिर ये इसने फिर ये सारे 1 -1, तो अब इसको ये ग्राफ मिल गया, ये डिक्रिप्ट होके मिल गया। जब ये डिक्रिप्ट होके मिल गया तो इसको ये पता है कि अंदर वाले जो जिसमें बोल्ड लाइन है, मतलब यूनिटरी एडिशन कैलिग्राफ, अब ये वर्टिसेस तो वही है ना 0 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें क्या है कि वो लगा लेगा, क्या नाम कहते हैं, फिर वो देख लेगा कि यूनिटरी एडिशन कैलिग्राफ कौन सा ग्राफ बना रहा है, बाहर वाला कौन से एजेस बना रहे हैं। अब उसको तो ये भी नहीं पता ना कि ये वाला एज है, ये वाला एज है यूनिटरी एडिशन कैलिग्राफ का। तो जब ये सारे वर्टिसेस पे यूनिटरी एडिशन साइन कैलिग्राफ बनाएगा, तो उसे ये पता चलेगा कि जो ये वाला नहीं, E8 E10 E12 नहीं E11, या E12 ले लो, E11 दोनों एक ही जैसे हैं, E2 और E4 E6 मिला के जो है वो वाले तो यूनिटरी एडिशन कैलिग्राफ वाले जो एजेस है वो तो एक्स्ट्रा एजेस तो निकाल देगा, फिर उसको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। दैट इज व्हाट इज द, फिर वो इंफॉर्मेशन से अपना काम कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रिप्टेड है,
फिर अब क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि हमने कर लिया, टाइम भी कम लगना चाहिए। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे कि वो ये जानते हैं कि भाई जब पॉलिनोमियल टाइम होगा ना, जब कन्वर्जेंस, अब ये सब तो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको तो मैथमेटिशियंस या कंप्यूटर साइंटिस्ट का हेल्प ही लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने जो साइन ग्राफ जिसमें मैसेजेस स्टोर्ड थे वो कितना बड़ा ग्राफ है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत छोटा सा समझाने के लिए लिया था। बड़ा ग्राफ लेंगे, बड़ा साइन ग्राफ लेंगे, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द ये दोनों पे। ये पहले साइन ग्राफ के एजेस कितने हैं, ठीक है, और जो यूनिटरी कैलीग्राफ के कितने एजेस हैं। अभी तो इन दोनों में बराबर बराबर एज थे, ऐसा जरूरी नहीं है बराबर बराबर एज हो। जब हम डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करेंगे नंबर ऑफ एजेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे एजेस भी होंगे, ठीक है। तो फिर इनका कितना, तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये सारा चीज वैल्यूज होगा जो कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारा कि therefore the overall time complexity of this stage in the algorithm is order of n1, the number of vertices, edges, कितना एज पहले साइन ग्राफ में था और कितना एज आपने दोबारा, ठीक है। जनरेटिंग की में टाउ1 टाउ2 का भी वो डिपेंड करेगा, मतलब कितने एजेस है यूनिट में, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, जिस स्टेप पे आपको वर्कआउट करके आप निकालोगे कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जैसे मैं तो खैर इस पे काम किया है, तो मैंने इससे कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। इसका कॉम्प्लेक्सिटी जब मैंने ये देखा तो कैन बी एक्सप्रेस्ड m the number of edges and gn where is the as gn is the time complexity of the subset। बीच में जितने जो टाइम लग रहे हैं ना ड्यू टू एजेस, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये एक और साइन ग्राफ बनाना है, फिर दोनों को मर्ज करना है, फिर उसके बाद जब हम बाद में निकालेंगे कि भाई एक्स्ट्रा एजेस यूनिटरी एडिशन कैलीग्राफ, जो जिसके पास पहुंचेगा यूनिटरी साइन कैलीग्राफ का एजेस निकालेगा, फिर जाके तो उसे मैसेज मिले, तो सब में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लग रहा है, तो वो ये बनेगा। ये सारा नोटेशनल फॉर्म में है, तो ये जो करेगा उसको पता है दैट द, अब जब टाउ इनवर्स टाउ फंक्शन, अगर ये जितना भी जो भी हम बीच में फंक्शन लेना वो वर्केबल और पॉलिनोमियल टाइम है तो ही अच्छा है, और नहीं तो फिर तो हमें आंसर नहीं मिल पाएगा जल्दी। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल टाइम में, ठीक है। तो इस पे क्या है कि इस पे बहुत सारे, इस पे जो इसमें कई काम किए हुए हैं। तो जैसे एक है कि मतलब ये सारे रेफरेंसेस है जिसको हमने यूज किया है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें कि ना इसमें और जैसे RSA एल्गोरिदम लगा के ये वाला एक और काम है, बहुत बढ़िया काम है। तो इसमें क्या किया कि एक साइन ग्राफ लिया, ठीक है, फिर उसमें हमने मतलब उसको कोड करने के लिए हमने ना उसमें RSA, मतलब एक RSA एल्गोरिदम होता है, एक RSA एल्गोरिदम जनरल बहुत पॉपुलर है लेकिन ग्राफ में नहीं, तो हमने उसको ग्राफ में लगा के फिर उसको प्रेजेंट करने का कोशिश किया कि भाई ग्राफ में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, साइन ग्राफ, मतलब उसको उसमें हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे ला सकते हैं। तो ये मतलब ये दिस इज वन ऑफ द वेरी राइप एरिया। अगर कोई कंप्यूटर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट इस पे काम करना चाहेगा तो बहुत सारा काम कर सकता है, पेपर सर्च कर सकता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूजिंग या क्रिप्टोग्राफी यूजिंग ग्राफ्स, साइन ग्राफ्स, है ना, तो उसको बहुत सारे वो मिल जाएगा। तो फ्रॉम देयर दे कैन वर्कआउट, ओके। तो ये एक छोटा एग्जांपल करके हमने बताया था। और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें, अभी बीच में किसी को कुछ पूछना है? मैम इसकी PDF मिल सकती है क्या? PDF ये हाँ मिल जाएगा, भेज दूंगी। ये वाला आप हाँ अपने ऑर्गेनाइजर से मांगिएगा। आप मनीष, आप कंप्यूटर साइंस के, मैथ्स के हैं? मैथमेटिक्स में। अच्छा अच्छा, तो अभी आप क्या हाँ कर रहे हैं मनीष?
मैं मैम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, यहीं पे कोटा यूनिवर्सिटी? नहीं, नहीं मैम, मैं प्रतापगढ़ पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। अच्छा, हाँ मैं दे दूंगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजर को दे दूंगी, हाँ, आपको आप जो भी मांगे उनको मिल जाएगा। ठीक। ठीक। और कोई किसी को कोई पूछना है तो? एक जो मेरा अभी जो पब्लिश्ड पेपर है ना आरएसए वाला, वो वो मैं दे दूंगी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक था ना साइन ग्राफ एंड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो आप उससे देख के आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ये जैसे ये तो पीपीटी फॉर्मेट में है, तो और भी आपको कुछ मैं देखती हूँ, अगर मैंने उसको उसको भी दिखा पाऊँ तो। एक सेकेंड, अगर आओ, इफ यू कैन होल्ड फॉर सम टाइम, जस्ट यस मैम। just 1 minute, है ना? I'll just see if it is there with me, I'll show you. And it was really, I mean, I generally don't teach in bilingual, I generally teach in English only. आज पहली बार मैंने bilingual use किया. I hope I was clear in everything. यस मैम। Just 1 minute. एक मैं देखती हूँ वो यस मैम। विक्रम राठौर। विक्रम राठौर, आप क्या कर रहे हो? मैम मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी, किसमें? मैथमेटिक्स से ही हूँ मैम। और किस ग्राफ थ्योरी से मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ पे? यहीं कोटा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट कॉलेज में? तो आपका टॉपिक क्या है? मैम अभी टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही हैं? नहीं, हाँ अभी स्टार्ट ही होगा। अभी स्टार्ट हुआ है। ओके ओके। मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट टॉपिक रहेगा? नहीं, टॉपिक तो आप अपने टीचर के हिसाब से लोगे ना। मैं अभी ऐसे कुछ नहीं है। आजकल तो स्पेक्ट्रा पे बहुत काम हो रहा है, स्पेक्ट्रम पे काम हो रहा है। ठीक है। और बहुत सारा है टॉपिक है, लेकिन आप अपने हिसाब से ही लोगे। ठीक है। ठीक है मैम। ओके, देखते हैं। नहीं मिलेगा तो फिर मैं बाद में भेज दूंगी आप लोग को, जिसको चाहिए तो। मैम होम साइंस में भी इसका यूज कर सकते हैं क्या? मैंने तो देखो, जहाँ पे वैसे तो ग्राफ थ्योरी का ना बहुत जगह यूज है, लेकिन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो अपने आप में एक चीज है ना, कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अब कैसे कॉन्फिडेंशियली, किस तरह का काम आपका होगा कि जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जनरली क्या है कि इसको हम उसमें यूज करते हैं जिसमें कि ना ट्रांसफर हो कुछ। तो हम कोई चीज को ट्रांसफर करना, उसमें हमें ज्यादा ये वो ना हो कि मतलब हमारा मैसेज कोई पढ़े ना, हम बस हमारा हम ही पढ़ पाए। तो यही है कि मतलब हम या जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं वही देख पाए। ठीक है, तो उसके केस में हम ज्यादा यूज करते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं तो उनमें भी लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। हाँ, देखा ना, तो वो सब आप देखो। अब आप जनरल है, जैसे होम साइंस या कोई स्पोर्ट्स या कुछ और है, अब उसको भी समझ में आएगा जब जैसे ये टॉपिक्स मैंने बताया कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज होती है, जब ही तो ये चल रहा है। तो उसके पीछे इतना आसान नहीं है, उसके पीछे कितनी पढ़ाई और कितना कुछ करना पड़ता है, वो है इसमें। व्हाट्सएप प्राइवेसी मेंटेन रहता है इस चीज में, हाँ, इसीलिए लिखा होता है। हर जगह हर जगह हर जगह, है ना? और जिसमें ज्यादा जो जितना स्मार्टफोन होगा उतना ही अच्छा होगा वो ये कहेंगे। अभी मुझे तो दिख नहीं रहा है ना, और मेरे को अगर ध्यान होता तो मैं पहले से निकाल के रखती। पर और क्या है, कंप्यूटर में ढूंढना पड़ रहा है, तो फिर मैं दिखाती हूँ। करते क्या, क्या बताएं, इतना काम है। कोटा
और कितने लोग हैं जो मैथ्स में कर रहे हैं यहाँ पे? मैं भी मैथ्स से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन देखे? मैं कौन है? फरहान अख्तर। अच्छा, फरहान अख्तर बूंदी। बूंदी जी मैम। के रहने वाले हो? बूंदी है आगे हैं? जी मैम, बूंदी के रहने वाले हैं। बूंदी भी है आगे, अरे वाह। तो जी। बताइए तो क्या मतलब किस टॉपिक पे कर रहे हो काम? मैम अभी टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ मगर ग्राफ थ्योरी पर करेंगे। ग्राफ थ्योरी पे करोगे? अच्छा। जी मैम। तो ये है क्या कहते हैं तुम्हारा वो पहले आज अभी तुमने डिसाइड नहीं हुआ है ना, तो अभी तुम पढ़ क्या रहे हो? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? मैम अभी तो ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करा मैम, बेसिक से स्टार्ट ही करा पढ़ना अभी तो। तो पहले कभी टॉपिक पढ़ा है ग्राफ थ्योरी? यस मैम, एमएससी में था डिस्क्रीट के अंदर। अच्छा, कहाँ से किया मास्टर? मैम मास्टर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बूंदी से। अच्छा, वो भी बूंदी से ही। अच्छा, जी तो मैम। वहाँ पे कौन पढ़ा रहे थे आपको? मैम यहाँ पे एम के टटवाल सर है, उन्होंने पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है, चलो। तो मुझे तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? छोड़ देते हैं फिर, है ना? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सारा अभी ना केले वाला ही मिल रहा है। वो वाला पुराना डॉक्यूमेंट है, वो बहुत पहले वो पुराना है, तो वो मिल नहीं रहा है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन के आएगा इसका? किसके एग्जाम में? एग्जाम भी होगा इसका? जी मैम। अच्छा, तो ये तो पते का क्वेश्चन है कि एग्जाम में कैसे। एग्जाम में ना जैसे ये आपको मिल जाएगा, ये आपने जैसे देखा, तो आप इस पे ये करेंगे कि इस पे जैसे आपने सब पूरा पढ़ लिया, तो अब जैसे फंक्शन के ऊपर आ गया क्वेश्चन, फिर कैलीग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फिर साइन कैलीग्राफ क्या है, साइन ग्राफ क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन। क्योंकि आपका तो पूरा वैसे है ना, बच्चे तो सारे डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो क्वेश्चन अभी ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो सब लोग जिसको बता पाए। ठीक है, तो यही है। और मैम इसके क्वेश्चन आंसर तो ब्रीफली आएंगे ना मैम? हाँ मैम जो अभी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन तो मैम ब्रीफली आएंगे? हाँ, ब्रीफ छोटे छोटे ही आएंगे, मतलब मैं ज्यादा बड़ा नहीं पूछूंगी। ठीक है, मैं पूछूंगी या वो लोग पूछेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो ब्रीफ ही आएगा। मैं अभी बस दिखा रही हूँ, मेरे को मिल गया है, तो मैं जस्ट अभी दिखा देती हूँ, बस फिर खत्म करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो जस्ट 1 मिनट शेयर करा। मैम आप आपके कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी बताती हूँ, पहले मैं वो दिखा दूँ फिर उसके बाद जी मैम। एक्चुअली है ना, बहुत इसमें दिखाने के लिए भी यू हैव टू बी एन आर्टिकल। इसमें कैसे देखूं? दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है? नो मैम। हाँ दिख रहा है अब। यस दिख रहा है मैम। अच्छा, तो पता नहीं इसमें से आए, इसमें से अब दिख रहा है सब कुछ? अभी भी दिख रहा है? हाँ मैम। अरे वाह, तब तो यहीं से आ गया। तब ठीक है, अब ये आ जी। गया। तो अब ये भाग गया। हाँ, ये तो ये है हमारा ना, ये जो पेपर है कि थ्रू आरएसए एल्गोरिदम भी। तो इसमें हमने पूरा मतलब कि ये अब तो ये कोई इसका पीडीएफ नहीं बना हुआ, तो इसमें पूरा ग्राफ थ्योरी का पहले तो समझना पड़ेगा, फिर उसमें आरएसए एल्गोरिदम होता है, उसको लगा के पूरा कैसे कैसे करते हैं। इसमें अपने आप से 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर अपने ऐसा कोई भी नंबर चूज करेंगे, और वो कर करके ना, तो ये मतलब तरह तरह से किया जा सकता है। और फिर वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये बनेगी, तो जिसमें कि
वही मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव एज कब होगा, फिर उसको कोड करेंगे, फिर उसी से डिक्रिप्शन करेंगे। तो ये भी एक तरीका है, मतलब ये दूसरा तरीका, ऐसे कई तरीके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बस ऐसे ही बताना चाह रही थी। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि जिसमें आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आप क्या करते हैं ना इसमें, जैसे ये साइन पहले जो भी गिवन है जिसमें इंफॉर्मेशन एजेस पे है, पहले उसको ऐसे उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया। फिर क्या किया, उसको ना एन्क्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए क्या किया कि यहाँ से बैक से लिखते हैं, मतलब एक ये देखो ये अब ये मैसेज को ना, इस जो ग्राफ था उसके मैसेजेस को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही मैथ्स के लोगों को पता होगा। तो ठीक है, तो पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मतलब ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो 1 पहले लिया, देखो 1, ठीक है, फिर यहाँ से पीछे से लिखेंगे 1 0। मैम आप जो बता रहे हो वो नहीं दिख रहा है उसमें। नहीं दिख रहा? अच्छा, आपकी मेल ही खुल रही है, ओपन हो रही है, बस कोई दिख रही है। क्या दिख रहा है? मेल ओपन करिए ना, जीमेल, हाँ, वही बस दिख वही रहा है। दिख रहा है। हाँ ये नहीं दिख रहा है, मैं इसको चाह रही थी, पता नहीं है क्यों नहीं आ रहा है। आई जस्ट डू, मैंने तो पहले अलग किया था, मेल खुला था, वो तो छोड़ दो, मैंने इसको ऐसे बस सोचा। वहाँ तक ही दिख रहा है, मेल खुल रहा है जहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, ये है, ये मैं चाह रही थी, ये खुल ही नहीं रहा, क्यों नहीं खुल रहा? ये ना इसका तरीका होता होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ये आ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। तो मतलब हम मैट्रिक्स को उल्टी तरीके से लिखेंगे और तरह तरह से कोड कर सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब था। मैं वो पेपर भी भेज दूंगी, पब्लिश पेपर है, ठीक है, स्प्रिंगर में। तो वो आप लोग जिनको भी मतलब चाहिए होगा, वो अपना देख के और अपना करेंगे, ठीक है। तो बस मैं अभी तो यहीं पे, आई जस्ट वांट टू फिनिश माय टॉक एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। जो बाकी सब्जेक्ट के लोग हैं उनको थोड़ा सा ये आइडिया लगा होगा, क्योंकि उनकी लिटरेचर का टॉपिक में हमारे मैथ्स वाले और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा, ये इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट को भी लर्न करते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको आगे बताने में या खुद करने में या किसी और को बताने में हेल्प करता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें रिसर्चर्स को हमेशा जुड़े रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या और जगह भी क्या काम है ना। तो आई स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मैडम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी, हाँ जी, ओम। हाँ यस मैडम, यस मैडम। हाँ बोलिए। जानकारी चाहता मैडम, जैसे मैं अभी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, रूरल टूरिज्म पर मैं पीएचडी कोर्स कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक है रूरल टूरिज्म। अच्छा, तो इसमें मैथमेटिक्स के भी आएंगे क्या, हमारे जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो भी? जो पेपर होगा, हाँ मैथमेटिक्स से ही तो होंगे ना। आप अब जब आपके ना सब, कॉमर्स रूरल टूरिज्म टॉपिक है मेरा। अच्छा, तो मेरा कांटेक्ट नंबर मैं भेज रही हूँ। रूरल अब वो है, लेकिन आपने ये ज्वाइन किया तो ये सोच के करना चाहिए था ना कि, नहीं मैडम, ये तो सभी को साथ में क्लास चल रही है, सभी की कॉमर्स साइंस मैथ्स सभी को साथ हाँ, दे रहे हैं। तो बस ठीक है, तो मैथ्स के भी आएंगे ही। अच्छा आएंगे क्या? हम्म, ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। हम्म। तो मैं यहाँ पे खत्म कर दूँ, कोई है मैं, हु इज देयर टू टेकिंग केयर ऑफ? Just can leave, ma'am. Okay. हाँ, आई कैन लीव। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। आई विश